हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, नॉरिन जेम्स, सना चौधरी, हेलो हेलो। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो मुसरत, मेरी आवाज आ रही है? सना, हेलो हेलो, मे आई स्टार्ट? हेलो, okay, so reply soon, as I'm long time asking you people. My voice is clear, but nobody is responding me. Thank you so much. So today our topic is demonstrations method. Remember the last lecture? Hello. What was our last topic? G. Anyone reply? What was our last topic? G. Sonia, remember last topic? What was it? Noreen. Hello. G. Last topic was reply soon. Oh, so interactive teaching. So remember the interactive teaching, that was the classroom practice sessions. It was the part of classroom practice session. So today we will learn about the demonstrations method. So demonstrations method के जरिए जो हम कैसे classroom practice करते हैं and what is the purpose of it. Maybe you are get familiar with these things, and as a class teacher, as a student, as a learner, audience, maybe you are so many times practice this demonstration method. So today we'll learn in detail about it. So good demonstration is a good good demonstrations. So your communications will be very much clear, and if you want to clear your communications, you need to focus and proper plan about the demonstration procedures. So every step and every method which you're gonna tell to the student, and you wanna about it with the clear objectives, so that everybody can understand you. So what is your objective? Like for example, today I'm gonna tell you about the demonstrations method, so everybody know what is demonstrations and what are the purpose of demonstrations, how to use the demonstration in the classroom, what are the cons, what are the pros of this demonstrations method,
So all the steps must be prioritized according to the step, so that everything will be very clear. Like first of all, in this procedures, I would like to tell you about first of all, I would like to tell you about what is demonstration method. So once you will get a clear understanding of the demonstrations, then you will able to know what is the further step to lead for this topic. So let us talk about demonstrations method. What is demonstration method of teaching? A method demonstration is a teaching method used to communicate an idea with the aid of visual such as flip chart, poster, PowerPoint, etc. A demonstration is the process of teaching someone how to make or do something in a step-by-step process. As you show how, you tell, and what are you are doing. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ये भी एक, जिसमें आपने पहले भी जैसे कोटेशन में लिखा कि गुड डेमोन्स्ट्रेशन गुड कम्युनिकेशंस। अगर आप अच्छे से बता रहे हो किस चीज का, मतलब मीन अपना आइडिया और अपनी चीजों को अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर्स। सो इन डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट क्या कर रहे होते हैं अपने आइडियाज को थ्रू किस चीज के, विजुअल एड्स जिसको आप डिस्प्ले करते हैं इन फॉर्म ऑफ फिलअप चार्ट हो सकती है, पोस्टर हो सकता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो सकती है, ठीक है, इन एनी फॉर्म बट अवर यू आर यूजिंग द मीडिया to your deliver your idea or your communications, so that should be with the clear instructions. Your strategy will be proper according to the procedure or step. So a demonstration is the process of teaching someone how to make or do something in a step by step process. Demonstration एक ऐसा teaching process है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी चीज करनी होती है आप उसको step by step process के जरिए करते हो, ठीक है। बस अगर आप उसमें कोई भी एक सीक्वेंस भी मिस कर दोगे तो दैट मीन आप उस पूरे प्रोसीजर को क्या कहते हैं प्रॉपर उसको उसकी जो सीक्वेंस को मेंटेन नहीं रखोगे तो वो प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं कर सकोगे, प्रॉपर आइडिया जनरेट नहीं कर सकते, प्रॉपर क्लियर कम्युनिकेशंस नहीं दे सकोगे। सो दैट मीन सीक्वेंस एंड स्टेप्स आर वेरी important to process the demonstrations. As you show how, you tell what you are doing. ठीक है, इसमें ये है कि आप इस तरह से दिखाओ कि जैसा शो कर रहे हो, जो बता रहे हो और जो कर रहे हो इज द सेम। आपने अपनी जो है अपने स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन को क्या करना है, डिलीवर करना है, उनको परफॉर्म करना है। सो एवरीबॉडी विल बी क्लियर। Demonstration is a teaching method frequently used to promote mostly in the nursing students. आपको पता है कि हम बहुत सारे प्रोसीजर यूज करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं थ्रू द डेमोन्स्ट्रेशन, जितने भी साइकोमोटर्स के नर्सिंग के बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, सम आर लेबोरेटरी प्रोसीजर, सम आर स्किल्स प्रोसीजर्स, इट डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्रोसीजर, व्हाट सब्जेक्ट दैट आर मैटर्स, ठीक है। ये आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहे हो और किस सब्जेक्ट का कौन सा प्रोसीजर है जिसको आप साइकोमोटर स्किल्स सिखाना चाहते हो या उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करवाना डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए करवा रहे हो। इन दिस मेथड द टीचर exhibit the procedure by explaining every procedure in sequence in front of the group of the student, either in the lab or in the real life setting. फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है कि ये प्रोसीजर जो है डेमोन्स्ट्रेशन के हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नर्सिंग स्टूडेंट यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मेथड जो है, इस मेथड में हम क्या कर रहे होते हैं, क्या शो कर रहे होते हैं, क्या डिस्प्ले कर रहे होते हैं, exhibit to show and display the procedure by explaining every step of the procedure in sequence, कि इसके जरिए हम एक्सप्लेन भी कर रहे होते हैं और हर प्रोसीजर के हर स्टेप को सीक्वेंस के साथ स्टूडेंट के ग्रुप के सामने जो हम उनके फ्रेंड या क्या कर रहे होते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, उसको एग्जिबिट भी कर रहे होते हैं, डिस्प्ले भी कर रहे होते हैं और साथ में उनको एक्सप्लेन करते हैं विद द सीक्वेंस ऑफ फ्रंट ऑफ एवरी स्टूडेंट्स, either in the lab or in the real life setting, ठीक है, इट डिपेंड। रियल लाइफ सेटिंग का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप लैब में नहीं कर रहे हो, पेशेंट के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड द रियल लाइफ सेटिंग। आप जब फॉर एग्जांपल आप पेशेंट के माउथ वॉश की बात कर रहे हो या पेशेंट के आप बेड बाथ की बात कर रहे हो, हेड वॉश की बात कर रहे हो, तो इफ यू आर डायरेक्टली अप्लाइंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट प्रोसीजर
for learning teaching to the your students. So you can आप स्किल में भी स्किल लैब में भी कर सकते हो अपनी क्या कहते हैं, ठीक है, आपके अंदर लैब में भी डमीज पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो और पेशेंट पे भी, रियल पेशेंट पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका जो इंस्ट्रक्टर है, जो आपका ट्यूटर है, जो आपका जो मेंटर है, वो आपको क्या करेगा कि पेशेंट के रियल सिचुएशंस के ऊपर आपको क्या बताएगा कि वो किस तरीके से करना, उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। लेकिन उसको क्या करना है, उसको वर्बलाइज भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है और उसके सीक्वेंस स्टेप्स का भी ख्याल रखना है, ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज को, अपने अपने जो है ऑरल जो आप अपना आइडिया दे रहे हो, जो अपना जो भी प्रोसीजर सिखा रहे हो, ठीक है, वो स्टूडेंट के साथ क्लियर कम्युनिकेशन तक पहुंचे, क्लियर कम्युनिकेशन से पहुंचे। द स्टूडेंट्स आर देन टेकन टू परफॉर्म अ रिटन डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। जब आप बता देते हो तो स्टूडेंट का काम करें, स्टूडेंट को कहना है कि रिटर्न में आप उसको परफॉर्म करके दिखाएं, ठीक है। इमीडिएटली रिटर्न का मतलब होता है आफ्टर टीचिंग you need to demonstrate by the students. Sometimes written demonstrations may not be necessary when the group is very large or the time required to perform the written demonstration is high. So sometimes he's according to this statement that sometimes maybe it's not possible to deliver in the large group and you cannot take the return डेमोन्स्ट्रेशन आप नहीं ले सकते क्योंकि लोग ज्यादा हैं, टाइम कम है, तो मुश्किल हो जाता है, ग्रुप ज्यादा है, लार्ज ग्रुप है, लोग ज्यादा हैं, ठीक है, तो रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म। So sometimes a lecture or informal talk may precede the demonstration to prepare a background for the same. बास्केट क्या होता है कि जो लेक्चर होता है या इनफॉर्मल टॉक होती है, ये क्या करती है, प्रोसीड द डेमोन्स्ट्रेशन टू प्रिपेयर द बैकग्राउंड ऑफ फॉर द सेम, ठीक है। सो सिंस नर्सिंग इज अ प्रैक्टिस ओरिएंटेड प्रोफेशन, दिस पर्टिकुलर मेथड इज क्वाइट इम्पोर्टेंट टू टीच साइकोमोटर स्किल्स टू द नर्सिंग स्टूडेंट्स। सो आपको पता है कि नर्सिंग क्या है, प्रैक्टिस ओरिएंटेड, मीन जिस पे प्रैक्टिस ज्यादा नेसेसरी होती है, यानी कि ज्यादा उसकी जो डिमांड होती है या रिक्वायर्ड रहती है वो ज्यादा प्रैक्टिस है। तो इसमें जो खास मेथड जो होता है ना, इसमें क्या करता है, इज अ क्वाइट इम्पोर्टेंट टू टीच साइकोमोटर स्किल्स टू द नर्सिंग स्टूडेंट। तो जब तक हम स्टूडेंट को ये स्किल्स नहीं देंगे, उनको सिखाएंगे नहीं डेमोन्स्ट्रेट करके क्लासरूम प्रैक्टिस सेशंस के दौरान, तो स्टूडेंट जो है दे कैन नॉट एबल टू परफॉर्म इंडिपेंडेंटली and confidently in front of the patients. So it is very important role of the teacher to prepare the students, for send them in the clinical area for the full practice so they can practice confidently and what to call it, and confidently with the full of knowledge, proper sequence so that they can practice properly. So it is advisable for the nurses teacher that every procedure must be taught in the classroom followed by practice in the laboratory. Then the student can be allowed to perform it in a clinical setting. So जो नर्स को टीचर्स को नर्स टीचर को क्या एडवाइस होना चाहिए कि एवरी प्रोसीजर मस्ट बी टॉट इन द क्लासरूम। हर प्रोसीजर को वो क्लासरूम के अंदर उसको सिखाना, दैट इज वेरी मैंडेटरी, सो दैट प्रैक्टिस वो लेबोरेटरी में करा रही है या कहीं भी करा रही है या लाइव रियल सिचुएशंस पे करा रही है, सो स्टूडेंट मस्ट बी, उनको अलाउ किया जाए कि वो बिफोर गोइंग टू क्लिनिकल सेटिंग दे मस्ट परफॉर्म this in the classroom rather in the clinical skill lab or in the real situations. So they must need to practice with the proper sequence of the step. So let us know about the demonstrations definitions, as the teaching method is the exhibitions of the procedure with the explanations of every step by the teachers in front of student, either in the laboratory or in a real life setting to develop or teach psychomotor skills. So demonstration teaching method है, ये क्या करता है, exhibit of procedure, इसमें हम क्या करते हैं, procedures को explain करते हैं with the explanation of every step of the teacher in front of the student. Teacher क्या करता है कि उस steps को show करता है to all the students और उनको explain करता है with the step के साथ,
ठीक है, in front of the student in laboratory or in a real life setting to develop or teach psychomotor skills. समझ आ गई इसकी? Is it clear? Clear to you people, please? Okay, so we learned the definitions of this. So demonstration step give training the opportunity to see, and here demonstration step trainees the opportunity to see and hear the detail related to the skills being taught. ठीक है, जो डेमोन्स्ट्रेशन के जो आप स्टेप्स जो होते हैं वो ट्रेनिंग को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो देख सकते हैं, देखने के साथ वो सुन भी सकते हैं रिलेटेड टू द स्किल्स बीइंग टॉट, जो कि स्किल से रिलेटेड जो चीजें बताई जा रही हैं, जो सिखाया जा रहा है, वो सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं. These detail include the necessary background knowledge, the steps or procedures, the nomenclatures and the सेफ्टी प्रिकॉशंस. ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि नेसेसरी बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, उसमें स्टेप्स और प्रोसीजर प्रॉपर होना चाहिए, उसका नॉमेनक्लेचर्स होना चाहिए एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस का भी आपको केयरफुल होना चाहिए कि कोई हार्म हैजर्ड ना हो, पेशेंट का ना हो, खुद का ना हो, इक्विपमेंट कैसे यूज़ कर रहे हो, उनका क्या से यूज़ करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द practitioner to know the proper operation of the equipment, that how to use it, how to close it, how to clean it. So every instrument must be having a knowledge to operate and apply on the patient. सो डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्मेंस मेथड के मैंने 4-5 स्टेप डाले थे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं. फर्स्ट आप जब आप प्लान करते परफॉर्मेंस में, पहले आपने एक्सप्लेन करना कि जितना भी हमने पढ़ा है उसकी समरी समझ लें. सबसे पहले आपने एक्सप्लेन करना है, फिर आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस को चेक करना है, इंस्ट्रक्टर सुपरविजन में अपनी सुपरविजन देखनी और फिर उनको अवेलुएट करना है. एक्सप्लेन में जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो ऑरली कम्युनिकेशंस बता रहे होते हैं तो उनमें उनकी सिमल्टेनियसली जो उसकी सेंसेस बैक वक्त में सारी सेंसेस काम कर रही होती है, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं. ठीक है, और वो एनवायरमेंटल फैक्टर से भी बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे थे, आपके क्लूज को अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के जरिए वो चीज़ों को डिफरेंट सेंसेस को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्मेंस मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आपने एक्सप्लेन करना है, फिर खुद डेमोन्स्ट्रेट करके देना है, करके बताना है, फिर स्टूडेंट से परफॉर्म कराना, फिर उनको कहना कि आप पहले प्रैक्टिस करें, फिर आपने कहना कि इंस्ट्रक्टर की सुपरविजन में भी आप उनको चेक करें थ्रू द ग्रुप. देन यू नीड टू evaluate them for standard checking of the procedures. So here are the some pros of pros. Did you understand by these pros? Pros mean advantage of the demonstration method. Demonstration activates senses of the learners simultaneously, which leads to better learning. जैसे मैंने आपको बताया है कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के जरिए लर्नर को हम डिफरेंट उसकी सेंसेस को क्या कर देते हैं, हम उनको बैक वक्त में उनको स्टिमुलेट करते हैं, जिससे उनकी लर्निंग जो होती है बेटर लर्निंग होती है, क्योंकि वो सेंस भी करते हैं, देखते भी हैं, फील भी करते हैं, सुनते भी हैं और साथ में उसके क्या करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, फील करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, तो ये सारी सेंसेस जो होती हैं उनकी एक्टिवेट होती हैं. इट inculcate observations skills among the student nurses, which is an essential requirement to the good nurse. ठीक है, आपने जो स्किल की जो ऑब्जर्वेशंस है among the student nurses, ठीक है, which is an essential to be the good nurse. ऑब्जर्वेशंस एक नर्स की अगर अच्छी है तो वो क्या कर सकती है, so which essentially required to be the good students. It correlate theory and practice. इसका फायदा ये है कि ये क्या करती है, आप अपनी थ्योरी को प्रैक्टिस कर सकते हैं. You need to correlate, कि आप उनका कंपैरिजन उनका प्रैक्टिस करेंगे कि थ्योरी with practice that make you perfect. It stimulate interest among students by use the correct
concrete illustrations of the sequence of the procedures. ये क्या करता है, क्या स्टिमुलेट के स्टूडेंट के कौन से इंटरेस्ट को आपको ये कंक्रीट इलस्ट्रेशन दे रहा है, यानी कि आपको एक फिजिकल एग्जिस्टेंस के अंदर आपको क्या कर रहा है, किसी चीज को शो कर रहा होता है। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट लीड होता है, उनको फिजिकल, क्योंकि वो देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, ठीक है, कि कंक्रीट है यानी कि फिजिकली चीज आप किसी को होते एक्शंस फॉर्म में देख रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, सीक्वेंस विद द सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर that is best for the learner. Written demonstrations by the student under the supervision of the teacher provide the opportunity to practice the particular skills before applying it in the clinical setting. So return skills, इसका फायदा ये है, इसका एक फायदा ये कि स्टूडेंट के दरमियान जो है वो इंटरेस्ट को डेवलप करती है। कैसे? बिकॉज कंक्रीट इलस्ट्रेशंस के जरिए, ठीक है, और सीक्वेंस प्रोसीजर के जरिए ये क्या करती है, स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट को डेवलप करती है। और दूसरा जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है उसका फायदा ये है कि जब आप एक स्टूडेंट को आप बता रहे हो, तो जब वो रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं बाय द स्टूडेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस the particular skill before applying it in the clinical setting. So उससे ये उनको फायदा होता है, आपकी सुपरविजन रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन जब स्टूडेंट करते हैं अंडर आपके सुपरविजन, तो उनको ये मौका मिलता है कि वो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं पर्टिकुलर स्किल बिफोर गोइंग टू द क्लिनिकल सेटिंग फॉर द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, बिकम कॉन्फिडेंट to be a best practitioner, so for the satisfaction of the patient as well as for your own performance, for the satisfactory performance. So cons इसके क्या disadvantage हम कह सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? Not suitable it if the group is very large. इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब बहुत ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो आप सबको इंडिविजुअली स्ट्रेंथन नहीं कर सकते, उनकी रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन नहीं ले सकते हो, ठीक है, तो उसमें ये है लार्ज ग्रुप में क्या उसका ये ड्रॉबैक है कि वो आप एवेलुएट नहीं कर सकते प्रॉपर, उनको चेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। रिक्वायर्स रिसोर्सेज टू कंडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, सो इसमें क्या जरूरत होती है कि आपको डेमोन्स्ट्रेशंस की रिसोर्सेज की जरूरत होती है। जब आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है तो आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, ठीक है, जब आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है तो आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। सो देयर इज अ टू कॉन्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस, वन इज कि अगर ऑडियंस ग्रुप ज्यादा है तो आप उनको प्रॉपर इंडिविजुअली लेवल पे भी उसको एवेलुएट नहीं कर सकते हो, और उसके लिए अगर इसमें आपको इसको करवाने के लिए आपको रिसोर्सेज रिक्वायर होती हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हो। अब हम सीखेंगे कि स्टेप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस कौन कौन से, कैसे करना चाहिए। सबसे पहले बिफोर डेमोन्स्ट्रेशन द टीचर में प्रिपेयर द फॉलोइंग मैनर्स, उसको क्या करना है, टीचर का काम क्या है, वो कौन से मैनर्स में उसको प्रिपेयर करेगा। फॉर्मुलेट द जर्नल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशंस। Yes, of course. Before, without objective, we cannot lead anything in any area of life, regarding your personal, professional, whatever area. Without your objective, you will not, you know, uh, get succeed, or you will not achieve anything. You must go to a specific objective. So regarding demonstrations, you need to plan and formulate the general and specific objective of the, आपने जनरल भी बताने हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी बताने हैं फॉर द डेमोन्स्ट्रेशंस। परफॉर्म अ through analysis of the skills and determine the sequence of activities to be carried out. If the procedure sequence is already standardized then follow it, ठीक है। आपने क्या करना है, थ्रू एनालिसिस आपने चेक करना है, उसको देखना है, समझना है कि मेरे स्टेप को प्रॉपर मैं कर रही हूँ, फर्स्ट स्टेप से अब तक एंड तक मेरा प्रॉपर सीक्वेंस है उसकी स्टेप्स की, उस एक्टिविटीज को अपने कैरिड आउट करना है। एंड यू नीड टू प्रैक्टिस सो मेनी टाइम अंटिल यू विल नॉट बिकम अ थिंग दैट इट इज ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड, देन आपने उसको फॉलो करना है। क्लियर?
जी, तो स्टूडेंट आपको ये स्टेप समझ में आ रहे हैं? यस मैम, गुले लाला, ठीक है, उमेरा बीबी एंड अदीला, सना चौधरी, अरफा, नीलम। सो दीज आर द स्टेप। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करना है इन अ स्पेसिफिक एंड जर्नल, ठीक है। जर्नल वे से अपने ऑब्जेक्टिव को रिगार्डिंग डेमोन्स्ट्रेशन यू नीड टू फॉर्मुलेट और यू नीड टू प्लान। देन आपने क्या करना है, यू नीड टू प्रैक्टिस थ्रू एनालिसिस ऑफ द स्किल एंड डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी। मीन कि आपने उसको स्टेप में प्रैक्टिस करना है अगेन एंड अगेन, कि जब तक कि आपकी सीक्वेंस ऑलरेडी आप समझते हैं कि आप स्टैंडर्डाइज हो गई है या आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, देन यू नीड टू फॉलो इट। So next step, identify and assemble the articles required for the demonstration. So आपने सबसे पहले identify करने हैं what things are required and then assemble में आपने इकट्ठा करना article जो आपको required है for the demonstrations. So ensure that all the articles are in working order. ये that is very important. अब पता चला जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्रैक्टिस आपने इतने साल दिनों से खोला ही नहीं है, आप पेशेंट पे प्रैक्टिस करने गए, आपने पेशेंट का प्रोसीजर स्टार्ट किया, पता चला कि आपके आर्टिकल तो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो इट विल बी अ बिग ड्रॉ बैक फॉर एंड अ शेम इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट इन द पेशेंट. सो यू मस्ट बी ensure before the check the article in the working condition or not. Formulate the lesson plan for the demonstration. So lesson plan, it is very important, lesson plan. So lesson plans में हम चेक करते क्या हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेसन प्लान में अपने ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना, फिर आपने क्या करना है, स्पेसिफिक एक्टिविटी लर्निंग एक्टिविटीज को देखना है कि जब आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, फिर आपने देखना है कि मैंने इसमें एक्टिविटीज कौन सी और किस तरीके से लीड करना है, कि मैंने कैसे बताना है, क्या करना है, एक्टिविटीज को सेट करना है, मैंने कौन सी चीज एक्सप्लेन करनी है, कौन सी डेमोन्स्ट्रेट करनी है, कौन सी चीजें एक्सप्लेन करनी है, डिस्कस करनी है, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें जो है आपने क्या कर लेनी है, स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटीज को प्लान करना है। फिर प्लान द स्टूडेंट, आप प्लीज लिख लें, अगर आपके पास लिख सकते हैं, पेन है आपके पास? Can you please write yes, no, you can. सारे फैन बंद कर दिए, एसी भी बंद कर दिया है, ऑन किए? So first step is identify, आपने क्या करना है, identify the learning objective, अपने अपने learning objective को clear करना है, then आपने specific activities को plan करना है, उसके बाद assess student, plan to assess the student understanding. फिर आपने उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए क्या करना, आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हो या स्टूडेंट से कुछ कोई भी आप जो भी वे यूज करना चाहते हो, आप स्टूडेंट से असेस कर, उनके अंडरस्टैंडिंग को असेस करने के लिए प्लान करोगे। फिर उसके सीक्वेंस, प्लान टू सीक्वेंस द लेसन इन एन engaging and meaningful manners, ठीक है। आपने स्लो मैम, okay, so first step, right, first step, identify the learning objective, clear? First step is identify the learning objective. Second, plan the specific learning activities. Third, plan to assess student understanding. Plan to assess student understanding. Fourth, plan to sequence the lesson in an fourth number पे plan to sequence the lesson in an engaging and meaningful manners. So plan fourth one है plan to sequence the lesson in an engaging and meaningful manners. So fifth one है
create a realistic timeline. That is very important, because if you will not create a specific time required for your demonstration, so you are not going to you are not able to perform properly in a, for example, you are your required time is 2 hours or 1 hour. If you are not plan accordingly, so you will not able to teach properly students. So maybe they will not able to understand properly. So a timeline is very important as well. 6 number have plan for our lesson closures. Okay, Fatima, listen now carefully. I'm going to repeat it again. So first is identify the learning objective. Identify the learning objectives. Second, plan the specific learning activities. Number 3, a plan to assess student understanding. Plan to assess student understanding. Fourth, plan to sequence the lesson in an engaging and meaningful manners. मैं कैसे करूं, बच्चों को समझ नहीं आती. Create a realistic timeline. Create two realistic timeline. Number 6, plan for a lesson closure. Plan for lesson closures. हो गया, ठीक है. So during the demonstrations आपने करना क्या होगा? Introduce the learner to the objectives of the demonstrations. During आपने क्या करना है? ये आपने first step कर लिया, लेकिन during में आपने क्या करना है? Introduce the learner to the objective of the demonstration. आपने उनको objective को बताना है. Motivate the student by explaining the importance of the particular skills. तो आपने students को कैसे motivate करना? Through by explaining the importance of particular skill. आपने इसकी importance को बताना है कि ये क्या है. Okay, in writing I'll share you people. ठीक है, don't worry. I'll give you the steps of lesson plan. ठीक है, clear? Later. So introduce the learner to the objective of the demonstration. Motivate the student by explaining the importance of particular skills. आपने students को क्या करना है? Motivate करना है. कैसे? Through telling the importance of particular skills. Ensure that every student is having a good view of demonstrations. So आपने क्या करना है? Ensure करना है that every student having a good view of demonstrations. आप ये कैसे करेंगे? इंडिविजुअल को डेमोन्स्ट्रेशंस के जरिए आप उनको क्या करेंगे? उनको इंश्योर करेंगे. आप उनको तसल्ली देंगे. आप उनको बताएंगे कि everyone need to practice. Arrange the article in order of use and explain the article to be used in the demonstration. आपने आर्टिकल को अरेंज करके ऑर्डर में रखना है, और फिर आपने आर्टिकल का जब यूज करना तो उसके बारे में बताइए कौन सा आर्टिकल है, इसके यूज करने का क्या मकसद है during the demonstrations. So demonstrations, the entire procedure at the normal pace. आपने सारे प्रोसीजर्स को एक सिंगल स्टेप्स के अंदर रिपीटेडली नहीं, बल्कि आपने क्लियरली स्टेप के साथ जाके सिंगल स्टेटमेंट के अंदर आपने क्लियरली बताना है. इफ द प्रोसीजर इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, अगर वो बड़ा है और कॉम्प्लेक्स है तो ब्रेक इट इनटू द पार्ट. ठीक है, जैसे प्री, ड्यूरिंग एंड आफ्टर. ठीक है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो कि पहले क्या करना है, ड्यूरिंग क्या करना है एंड पोस्ट क्या करना है. Always use a positive approach. Students should be taught first about what to do, then what not to do. ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच आपने कैसे यूज करनी है कि आपने उनको सबसे पहले ये बताना कि कौन सी चीजें आप कर सकते हो और कौन सी चीजें नहीं कर सकते हो. Explain each step meticulously and slowly in sequence. Name the article used in each step and explain how to perform that step.
आपने यानी कि बड़ी क्या कहते हैं कि मेटिकुलस का मतलब होता है कि बड़ी अटेंटिवली, बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी अटेंटिवली आपने उसको करना विद स्लोली इन सीक्वेंस, यानी कि आपने ये नहीं है कि बहुत तेजी से कर दिया, जल्दी जल्दी किया और उसको क्लियरली नहीं किया, लेकिन आपने क्या करना है, आपने एक्सप्लेन करना है, साथ में उन आर्टिकल का नाम भी यूज करना है। क्या टाइप करो मतलब नो, I will send you this step. So demonstration entire procedure at the normal pace. If the procedure is long and complex, break it into the part. Always choose a positive approach. Students should be taught first about what to do, then what not to do. अपने सबसे पॉजिटिव अप्रोच स्टूडेंट के साथ हमेशा यूज करनी है और उनको ये पहले बताना है कि सबसे पहले आप उनको ये बताएंगे क्या चीजें कर सकते हैं, आप क्या चीजें नहीं कर सकते हैं, so that it will be clear to the student. Explain each step meticulously and slowly in sequence. Name the article used in each step and explain how to perform that step. आपने स्टूडेंट को सारा अटेंटिव रखना है, हर स्टेप्स के जरिए जो आपने एक्सप्लेन करना है आपने अटेंटिवली, ताकि स्टूडेंट हमेशा अटेंटिवली रहें, और स्लो सीक्वेंस में बताना है, और जो आर्टिकल्स आप यूज कर रहे हैं उस हर स्टेप के साथ उसको एक्सप्लेन भी करना है, हाउ टू परफॉर्म दैट स्टेप, तो उसको किस तरीके से आप स्टेप को अपनी परफॉर्मेंस के जरिए स्टूडेंट को बताएंगे ताकि स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सकें। ड्यूरिंग में कंटिन्यू है, obtain feedback from the student after each step by questioning and by observing the non-verbal behavior of the student. आपने स्टूडेंट से जब फीडबैक लेनी है एवरी स्टेप के बाद, आफ्टर ईच स्टेप बाय क्वेश्चनिंग, आपने ये स्टेप बताया, एक स्टेप बताया, उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन करने हैं और उनको ऑब्जर्व करना थ्रू द नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, के वो किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Re-emphasize the vital important step at the end of the demonstrations. Re-emphasize करना है दोबारा से इसका कि इस the vital and important step of the end of the demonstrations, के खास चीजों में क्या और कौन थी उनको और उनकी क्या importance है, that should be demonstrated always at the end of the time. You need to re-emphasize, आपने उस पे re-emphasize करना है। Explain how to record the procedure in nurse record with the time and date, which is very important. कि आपने जो procedure किया that should be documented with the time date, ठीक है, कि आपने उसको time record करना है through the written or whether through the audio or visual, whatever you want to use the media for recording the lectures. So conclude and summarize, आपने फिर उसको क्या करना है, conclude और summarize भी करना है। So like पिछली स्लाइड में हमने सीखा था कि आपने क्या करना है, हमेशा अगर कॉम्प्लेक्स और बड़ा प्रोसीजर तो आपने उसको पार्ट में बना ले, जैसे मैंने इसको बनाया, ठीक है। आपने देखा था स्टेप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, सबसे पहले ये फर्स्ट के हैं, फर्स्ट स्टेप, देन ड्यूरिंग, हमने ड्यूरिंग को डिस्कस किया है, इसके कितने स्टेप हमने पढ़े हैं ड्यूरिंग के, ये ड्यूरिंग के स्टेप है। अब नाउ we will discuss after the demonstration. After demonstrations आपने क्या करना है, student should be asked to perform a written demonstration so that they will master the skills before applying it in a clinical situation. The most effective learning take place when the student use a skill immediately after they have learned it. So उसने कहा है कि जब आपने स्टूडेंट से आपने हमेशा स्टूडेंट आफ्टर आपने जब आपने स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है तो आपने स्टूडेंट को इमीडिएटली, जब आप सिखाते हो, इमीडिएटली रीडेमोन्स्ट्रेशंस करवानी है स्टूडेंट, ताकि वो मास्टर हो जाए, ताकि अप्लाई करने से पहले, क्लिनिकल सिचुएशन में जाने से पहले वो क्या हो जाए, मास्टर हो जाए। क्योंकि जब
जब हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो इमीडिएटली आफ्टर द टीचिंग और लर्निंग द स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, रीडेमोन्स्ट्रेट कराएंगे तो दे विल क्विकली follow the step and they will not forgotten the law, have no gap and lost the information. They will carry it and in the sequence manner. ठीक है, तो वो उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा. Therefore, as soon as the teacher teach the student to do a job, have them practice the skills. So therefore ये क्या है, teacher teach the student to do a job. ये टीचर का काम है कि हमेशा स्टूडेंट्स को इमीडिएटली काम करने के लिए, ताकि वो क्या करे, हैव देम टू प्रैक्टिस द स्किल. So individualize the written demonstration to satisfy the student need. आपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या करना है, रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन देनी है ताकि स्टूडेंट्स की जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाए. सो नोबडी कैन ब्लेम एंड क्लेम दैट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. आपने उनके डाउट को क्लैरिफाई करना है. इनवाइट द क्वेश्चंस एंड आंसर क्वेरीज एट द एंड ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन. आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स को कहना है कि वो उनके जितने भी आपको समझते उनके डाउट हैं, आपने उनको बताना है जो मिस गैप रह गया, जो अंडरस्टैंड नहीं कर सके, तो आपने उनको क्या करना है, हमेशा इनवाइट फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर क्वेरीज एट द एंड ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन. एंड देन यू नीड टू रिप्लेस द आर्टिकल. रिप्लेस आर्टिकल्स मीन आप समझते हैं कि आर्टिकल्स को प्रॉपरली क्लीन करना है और उनके डेट और टाइम्स लगा के आपने कब उनको क्लीन ऑटोक्लेव किया है या जो भी किया है, आपने उसको एसेप्टिक टेक्निक के जरिए उसको रिप्लेस करना है. सो हियर इज वन अनदर मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. हमने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को करेगा तो हमने ये भी पढ़ा था प्योरली डेमोन्स्ट्रेशन. ये लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, कंबाइंड स्ट्रेटजी यूज करते हैं. इट इज अ कंबाइंड टीचिंग स्ट्रेटजी इन विच लेक्चर इज अकम्पनीड बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्किल, जिसमें लेक्चर के जरिए डेमोन्स्ट्रेट को कैरी किया जाता है. अकम्पनीड मीन उसके साथ, जो किसी चीज के साथ किया जाता है. दिस मेथड ऑफ टीचिंग इंक्लूड द मेरिट ऑफ बोथ द लेक्चर एंड द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. इस टीचिंग मेथड के अंदर क्या होता है, दोनों ही कि आपने देख रही हैं कि मेरिट दोनों का आपको एक्सीलेंसी नजर आएगी, लेक्चर भी और डेमोन्स्ट्रेशन दोनों की. The teacher perform the skill demonstration in the class and goes on explaining. टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है और फिर उसको एक्सप्लेन करता है. रनिंग लाइक एक रनिंग कमेंट्री की तरह होता है. What they do, it take into account the active participation of the student and is thus not a one-sided show like the lecture method. इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का, टीचर बता रहा है इमीडिएटली स्टूडेंट्स को क्या उसको परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, यानी कि टीचर बता रहा है, स्टूडेंट का काम है वो क्या करेगा, इमीडिएटली उसको क्या करेगा, अप्लाई करेगा. ठीक है, ये लेक्चर की तरह नहीं जैसे मैं बोल रही हूँ, ये लेक्चर मेथड यानी कि वन साइडेड शो है, मैं ही बताया जा रही है. आई डोंट नो whether you properly learning or understanding or not. ठीक है, this is the drawback of the lecture method. The students see the actual equipment and live step of the procedure. इसका एक फायदा यह है कि स्टूडेंट एक्चुअल इक्विपमेंट को भी देख लेते हैं और प्रोसीजर स्टेप को भी लाइवली उसको क्या एक्सपीरियंस करते, thereby feeling interested in the learning. इसलिए उनका इंटरेस्ट जो एक्टिवेट रहता है. It provides the students with the knowledge as well as the skill of the particular nursing procedure. इसमें उसको नॉलेज भी मिल जाता है और स्किल्स भी मिल जाती है. स्टूडेंट ऑब्जर्व द डेमोन्स्ट्रेशन क्रिटिकली एंड ट्राइंग टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस. स्टूडेंट्स को जो है ऑब्जर्व करने का डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए क्रिटिकली और उनसे वो क्या ड्रॉ इन्फ्रेंस मीन कंक्लूजन, जिनकी समरी भी उनको मिल जाती है. Thus, with help of the lecture cum demonstration method, their powers of observation and reasoning are also exercised. ठीक है, इसमें उनकी ऑब्जर्वेशन की पावर भी जो एक्टिव होती है और साथ में उनके साथ रीजनिंग कैपेसिटी भी एक्सरसाइज हो रही होती है. बहुत मल्टीपल डायमेंशनल, उसकी जो मल्टी डायमेंशनल सेंसेस जो होती है ना, वो इससे सिमल्टेनियसली जो है वो एक्टिवेट हो जाती है. Pros of lecture con method के क्या क्या pros है. It is economically method of teaching, especially use of the resources limited setting. यानी कि उसने कहा कि ये इकोनॉमिकली बहुत ही चीपर समझ लें, इसमें ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती. स्टूडेंट टेक एक्टिव इंटरेस्ट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. टू टीच स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि वो देख भी रहे हैं और साथ में उसको अपने खुद से भी अप्लाई कर रहे हैं. It leads the student from the concrete to abstract situation. आप वो स्टूडेंट को
यानी कि कंक्रीट एक फिजिकल एग्जिस्टेंस लेकर एक कॉन्सेप्ट डेवलपिंग तक, यानी कि वो खुद से अपने माइंड में आइडियाज को क्रिएट कर सकते हैं. इट इज अ सूटेबल मेथड इफ द apparatus to be handled is costly, sensitive, or such apparatus is likely to be damaged by the student. So उसने कहा ये सुटेबल मेथड है जब आप किसी apparatus को यूज करना चाहते हो, वो कॉस्टली और सेंसिटिव है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो आप उसको थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन आप उसको वर्बलाइज करते हो और साथ में उसको एक्सप्लेन भी करते हो. दैट इज द ड्रॉज. अगर आप समझते हो कि कोई ऐसा अपरेटस है जिसका यूज करने से उसका डैमेज हो सकता है, वो कॉस्टली भी है, बाय नहीं कर सकते हो, या कुछ एवर सच अपरेटस इज लाइकली टू बी डैमेज बाय द स्टूडेंट, या फिर वो अपरेटस स्टूडेंट के लिए को डैमेज कर सकता है एंड वी आर नॉट अलाउड टू द स्टूडेंट टू यूज. So this is the benefit of lecture cum demonstration method. This method is safe if the experiment is dangerous. अगर कोई experiment dangerous है तो उसमें भी हम lecture method use कर सकते हैं. It can be successfully used for all the type of student. It improve the observational and reasoning skills of the student. So इसमें इसने कहा कि ये कहते हैं It can be successfully used for all the type of student. ये सारे हर जो स्लो लर्नर रहते, फास्ट लर्नर्स हैं, सबके लिए इक्वली यूज हो सकता है और इससे स्टूडेंट्स की ऑब्जर्वेशनल और रीजनिंग स्किल जो होती है इम्प्रूव हो सकती हैं. कॉन्स क्या होते हैं? इट प्रोवाइड्स नो स्कोप फॉर लर्निंग बाय डूइंग. इसमें ये नहीं है कि आप एक चीज को किया है तो उसको दोबारा रिप्रैक्टिस करें. इसमें ये क्या बताया तो उससे आप अपने माइंड से अपना माइंड यूज करते हो उसको मतलब भी कंस्ट्रक्ट आइडियाज को करते हो, ठीक है. इसमें लेकिन आपको ड्राइंग की जरूरत नहीं होती. फॉर द स्टूडेंट एज दे आर ओनली ऑब्जर्विंग द टीचर परफॉर्मिंग. Since the teacher performs the experiment at his or her own pace, many students may not be able to comprehend the concept being clarified. जबकि स्टूडेंट टीचर समटाइम जो होता है अपने पॉइंट व्यू से चीजों को बता रहा होता है, लेकिन हो सकता है स्टूडेंट उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और उनके कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली क्लैरिफाई नहीं कर सकते. सो ये इसका ड्रॉबैक है, यानी कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है या डिसएडवांटेज हो सकता है. इट इज नॉट अ स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड as it make no provision to the cater to individual differences among learners. So all the type of student including slow learners and genius have to proceed at the same speed. ठीक है. इसका ये मेथड ये है कि क्योंकि ये एक तो मेथड ये है कि ये स्टूडेंट सेंटर नहीं है, इसमें जो कैटरिंग जो प्रोविजन हो रही है वो क्या है, डिफरेंस अमंग द स्टूडेंट लर्नर्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द लर्नर्स. आप इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को नहीं कि कौन सा स्लो है, कौन सा तेज है, जीनियस है या फिर स्लो लर्नर्स है. इट फेल टू डेवलप लैबोरेटरी स्किल्स इन द स्टूडेंट. ये भी इसका ड्रॉबैक है. इन दिस मेथड student may fail to observe many finer detail of the apparatus used because they observe it in from the distance. इसका ड्रॉबैक ये है कि स्टूडेंट डिस्टेंस से लर्न कर रहे हैं तो उसको क्लोजली उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा कि किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है या फिर क्या है कि उसका कैसे यूज़ हो सकता है, क्या चीज़ है, उसके क्या फंक्शन को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है. तो ये इसका ड्रॉबैक हो सकता है. So as we were talking about the demonstrations, let me repeat these lectures and draw conclusions. First of all, I would like to tell you today our topic was सादिया प्लीज वो मेरा शॉपर देना, मेरा गले खुश्क हो गया. पढ़ा वो शॉपर से नहीं पढ़ा वो. जी हमने पढ़ा आज क्या पढ़ा, आज हमने डेमोन्स्ट्रेशंस पढ़ा, लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी हमने साथ में पढ़ा.
Have a in 5 minutes. Thank you so much. Thank you. God bless you. So this was our first slide, because good demonstration is a good communications. So always, अगर आपने अच्छे से स्टेप बताया है तो आपने अपने आइडियाज को, जो अपनी थॉट को क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया अपने स्टूडेंट्स को। अगर आपने स्टेप की सीक्वेंस का ख्याल नहीं रखा तो इसका मतलब है आपने क्लियर कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स को नहीं प्रोवाइड की। So, ये जो मेथड था, ये हम इसको क्या क्यों यूज करते हैं, इसको हम मेथड डेमोन्स्ट्रेशन इज द टीचिंग, एक टीचिंग मेथड है जिसमें हम आइडियाज को कम्युनिकेट कर देते हैं थ्रू द विजुअल, सच एज कौन से विजुअल जो है स्ट्रेटजीज के जरिए, लाइक फॉर एग्जांपल फिलिप चार्ट बना सकते हैं, पोस्टर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए। तो इसमें ये होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते हैं, साथ में उसके एक्सप्लेनेशन देते हैं एंड डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। देन रिटन डेमोन्स्ट्रेशन करके स्टूडेंट को स्ट्रेंथन करते हैं और उनको टू बिकम अ कॉन्फिडेंट प्रैक्टिशनर इन अ क्लिनिकल सेटिंग। ये मैंने आपको डिटेल में बताया। फिर मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी कि डेफिनेशन इसके क्या है, ठीक है। ये क्या है, ये एक्सप्लेन टीचिंग प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, इधर इन द लेबोरेटरी और इन अ रियल लाइफ सेटिंग, टू डेवलप टू और टीच साइकोमोटर स्किल्स, ठीक है। हम स्टूडेंट्स को रियल लाइफ के अंदर या फिर लेबोरेटरीज के अंदर ये चीज़ों को प्रैक्टिस करवाते हैं। मैंने इसके आपको प्रोसीजर के स्टेप मेथड बताते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, स्टूडेंट परफॉर्मेंस करवाते हैं, फिर इंस्ट्रक्टर सुपरविजन के जरिए हम उसको रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन से लेते हैं, देन वी एवेल्युएट स्टूडेंट्स। प्रॉज हमने इसके डिस्कस किए थे कि प्रॉज इसके कौन कौन से हैं। लिस्ट ऑफ प्रॉज आई ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल। Pros of demonstration method, cons of demonstration method, कि कहाँ पे स्टेप इसके क्या क्या थे, हमने देखा था कि हमने इसको क्या कर थ्रू एनालिसिस के जरिए हमने क्या करना है, स्पेसिफिक और जो उसके जनरल ऑब्जेक्टिव हमने किए थे, ताकि हम अपने प्लान को प्रॉपरली जो है परफॉर्म कर सके। इसमें हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन इनटू 3 स्टेप, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। सो स्टेप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस ये हमने पढ़े थे कि हमने कैसे कैसे करने हैं। फिर हमने ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशंस के स्टेप पढ़े थे, ये क्या हैं। देन अगेन आफ्टर स्टेप हमने डिस्कस किए हैं कि आफ्टर डेमोन्स्ट्रेशंस कौन कौन से स्टेप आप परफॉर्म करेंगे। एंड फिर हमने डिस्कस किया था लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशंस मेथड, कि ये क्या चीज़ है। उसमें तो हम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे, इसमें हम लेक्चर देते हैं और साथ में उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे होते हैं। इसमें हमने देखा था इसके फायदे क्या हैं, प्रॉस क्या क्या हो सकते हैं। प्रॉस ये इकोनॉमिकली ये क्या नाम है, चीपर है, और अगर रिसोर्सेज लिमिटेड सेटिंग है तो आप उसके लिए फायदेमंद है, आप यूज कर सकते हैं इसे। स्टूडेंट एक्टिव इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि वो देख भी रहे होते हैं और इसको कर भी रहे होते हैं। इट लीड टू स्टूडेंट टू कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन, ये भी हमने बड़ी डिटेल में पढ़ लिया। कौन सा हमने डिस्कस कर लिया किसके क्या क्या है। जब लेबोरेटरी स्किल्स फेल हो जाए तो हम ये कर सकते हैं, जब हमारे पास कोई ऑपरेटर्स इतना महंगा है, हम स्टूडेंट्स के जरिए उसको नहीं यूज नहीं करवाना चाहते, तो फिर भी तब भी हम ये कर सकते हैं। ये इसका फायदा था, सॉरी, ठीक है। So at the end, this is the thank you so much for listening, and if you have any queries and doubt, you can ask again. Everything is clear to you?
होल। मिड का सिलेबस होल है, क्योंकि इसके बाद हमने मिड टर्म के बाद इस सब्जेक्ट को कैरी आउट नहीं करना है, इसलिए जितना पढ़ाया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, यू नीड टू लर्न अबाउट इट, ठीक है, इन डिटेल। हेलो, hello my dear student, so see you okay, okay, bye bye, God bless you.